A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present the retirement death of a partner chapter is going on, and at present topic is revaluation account and partners capital account. In the previous video, in the previous lecture, I have discussed the format of revaluation account and partners capital account. And my dear student, today we will discuss a question of revaluation and partners capital account. My dear student, this is a format of revaluation account we have discussed in the previous video. This is a format of partners capital account and we have discussed in the previous video. Now today we will discuss this question 36 illustration from the T.S. Grewal book, my dear student. So now I will start this question. In this question it is written that on 31st March 2019 the balance sheet of MS Messrs A, B and C sharing profit and loss in the proportion of their capital. My dear student, they are saying profit and loss in their capital. It means this is a capital ratio. It means capital of ABC is equal to 4,50,000, 3 lakh and 1,50,000. My dear student, first of all I will come here, and first of all I want to check that old ratio of ABC 4,50,000, 3 lakh and 1,50,000. तो अगर 3 जीरो हटा दें तो 45, 30 एंड 15 की टेबल से काटेंगे. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45. तो माय डियर स्टूडेंट, द ओल्ड रेशियो विल बी 3:2:1 in that situation, because they are saying that old ratio is a capital ratio. That's why I have written the capital here, and इस capital से हमने इस ratio को हमने calculate करके निकाल दिया. तो 3:2:1 this is the ratio, my dear student. Now I will come on the next point. The balance sheet was as follows, my dear student. Balance sheet is this. In the liability side we will search reserve, fund and profit, and in the asset side we will see the goodwill and loss, my dear student. We will search. ये 5 आइटम हमें ढूंढने हैं इसमें, लेकिन उससे पहले my dear student, दिस कैपिटल. तो अगर ये कैपिटल दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट पर आते हैं, my dear student. हम चेक करेंगे यहाँ पर. नाउ दिस इज़ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल कम. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में आएंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट इट कि बाय साइड में ही कैपिटल को लिखते हैं. तो बाय बैलेंस BD कैपिटल 4,50,000, 3 लाख एंड माय डियर स्टूडेंट 1,50,000. इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर इट वी विल चेक द रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट इन द लायबिलिटी साइड. येस माय डियर स्टूडेंट, देयर इज़ वन. नाउ वी कैन चेक देयर इज़ वन रिजर्व, जनरल रिजर्व, and the amount of general reserve is 12,000, my dear student. So this 12,000 will be distributed among the capital ratio, and capital ratio is this 3:2:1. ये रेशियो हमने कैलकुलेट करा था. 12,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और माय डियर स्टूडेंट, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट हमें कहाँ लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय साइड में, बाय साइड, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द फॉर्मेट. तो बाय साइड बाय जनरल रिजर्व. और माय डियर स्टूडेंट, 12,000 रुपये को अगर 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फर्स्ट आंसर विल कम 6,000, सेकंड 4,000 एंड थर्ड 2,000, माय डियर स्टूडेंट. इसके अलावा कोई रिजर्व नहीं है, माय डियर स्टूडेंट. रिजर्व फंड प्रॉफिट नहीं है इन द लायबिलिटी साइड. नाउ देयर इज नो एनी रिजर्व, एनी फंड, एनी प्रॉफिट. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम इन द एसेट साइड. इन द एसेट साइड आई विल सर्च द 2 आइटम गुडविल एंड लॉस. This is a cash, debtors, stock, machinery, land and building, and profit and loss. My dear student, this is a profit and loss. It means this is a loss, my dear student, because I have explained if profit and loss is written in the asset side, so it means this is a loss, and the loss amount is, my dear student, this is 12,000. So it means it should come in the debit side of the partners capital account. So now in the partners capital account, in the debit side, I will write the profit and loss. This is a loss. And in 3:2:1, this is the old ratio, my dear student. In the old ratio 3:2:1, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही सेम अमाउंट आ जाएंगी 6,000, 4,000 एंड 2,000, माय डियर स्टूडेंट. तो इस तरह से आप इन अमाउंटों को लिखते हुए चलेंगे, माय डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पर जो आप अपना इन द लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट, इन द एसेट साइड गुडविल लॉस, जब ये आइटम सारे कंप्लीट हो जाएँ
तो इसके बाद नाउ यू विल कम ऑन द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन. दे आर सेइंग बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म on 1st April 2019 and the remaining partners decide to carry on the partnership. बाकी पार्टनर अपने पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए डिसाइड करते हैं. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एग्रीड बिफोर द अमाउंट पेबल टू बी वॉज डिटरमाइंड. तो माई डियर स्टूडेंट, नाउ दे आर सेइंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. अगर एसेट और लायबिलिटी का अब वैल्यूएशन होगा तो नाउ द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. out of the firms, out of the fire insurance premium rupees 10,000 be carried forward. तो ये कह रहे हैं कि जो आपका फायर इंश्योरेंस है उसे बी कैरियड फॉरवर्ड, मतलब आगे लेके जाना है एज अनएक्सपायर्ड, बिकॉज वो अनएक्सपायर्ड है. इसका मतलब वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ था एंड यू हैव पेड द अमाउंट इन एडवांस. तो दिस इज प्रीपेड एंड you know very well about it that prepaid is your asset. My dear student, if prepaid is your asset, so my dear student, the prepaid amount is a 10,000 rupees, and 10,000 rupees is a unexpired expenses, or we can say this is a prepaid expenses. So if this is a prepaid expenses, so prepaid is your assets, and if one asset want to come in the partnership form, so definitely this is a profit, and if this is a profit, so we will write in the buy side, in the credit side. My dear student, buy unexpired fire insurance premium, otherwise we can write by prepaid fire insurance premium, and amount is my dear student 10,000. तो बिकॉज प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड आपकी एसेट होती है, ठीक है. तो डेट्स वाई इसको हमने एसेट साइड, इसको हमने फ़ायदे की साइड में लिखा, बाय साइड में, बाय साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ आई विल कम ऑन द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज दिस, लैंड एंड बिल्डिंग be appreciated. Again I am coming here, land and building be appreciated by 10%. My dear student, they are saying land and building be appreciated, appreciated का मतलब बढ़ रही है by 10%, 10% से. My dear student, I will come on the asset side. In the asset side I will check this is the land and building and the amount of land and building is 5 lakh rupees. 5 लाख का 10% निकालेंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये आएगा, और 50,000 रुपये से अप्रिशिएट हो रही है, तो अप्रिशिएट हो रही का मतलब बढ़ रही है. तो डेफिनेटली इफ़ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड, इट इज़ अ प्रॉफिट. इफ़ दिस इज़ अ प्रॉफिट, तो ये कहाँ आना चाहिए, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आना चाहिए. कौन सी साइड में, इस साइड में आना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल चेक दिस इज़ अ बाय साइड. इन द बाय साइड वी कैन चेक बाय लैंड एंड बिल्डिंग बिकॉज इट इज़ अप्रिशिएटेड, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इज़ अ 50,000 रुपीज़ बिकॉज 10% इंक्रीज हो रही है. तो 10%, 5 लाख का 10%, दिस इज 50,000 रुपीज़. माई डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको एक एक करके आपको ये अमाउंट लिखनी है. माई डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट. थर्ड एडजस्टमेंट इज थिंग लाइक दिस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर. 5% ऑफ डेटर, डेटर के 5% तक हमें करने हैं. ब्रॉट का मतलब लाना है, अप टू 5%, 5% तक लाना है ऑफ डेटर के 5% तक लाना है. तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द बैलेंस शीट. इन द बैलेंस शीट दिस इज़ अ डेटर एंड दिस इज़ अ प्रोविज़न, और प्रोविज़न को 5% तक लाना है. माय डियर स्टूडेंट, प्रोविज़न अमाउंट इज़ अ 2,000. तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 रुपये आता है. और माय डियर स्टूडेंट, दे आर सेइंग डेटर का 5%, तो डेटर 1 लाख रुपीज़, इसका 5% निकालेंगे तो 5,000 आएगा. तो प्रोविज़न विल शुड बी द 5,000. माय डियर स्टूडेंट, 2,000 तो प्रोविज़न ऑलरेडी है, तो 3,000 रुपये तक और बढ़ाना है. और माय डियर स्टूडेंट, इफ़ प्रोविज़न विल बी इंक्रीज तो इट इज़ अ लॉस, बिकॉज अगर हम कहते हैं प्रोविज़न इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. अदरवाइज सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ कि प्रोविज़न माइनस हो रहा है डेटर में से, तो इट अगर माइनस 2,000 रुपये हो रहे हैं, फिर माइनस 5,000 रुपये होंगे, तो डेफिनेटली ज़्यादा नुकसान होगा हमें, हमारे डेटर्स को. तो इट इज़ अ लॉस. इफ इट इज़ अ लॉस, इट शुड कम इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट, आई विल शो इन द डेबिट साइड दिस इज अ टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड टोटल अमाउंट इज़ अ 5,000 एंड 2,000 ऑलरेडी ओल्ड है. तो माय डियर स्टूडेंट, द नेट अमाउंट इज़ अ 3,000. तो वो कह रहे हैं 5,000 रुपये तक लाना था, 5% तक लाना था, 5,000 रुपये तक लाना था. 2,000 था तो 3,000 रुपये का और हमने इंक्रीमेंट करा, तो ये हमें नुकसान हुआ.
My dear student, now I will come on the fourth point. Fourth point is this: machinery be decreased by 5%. मशीनरी डिक्रीज होगी 5% से. तो नाउ आई विल कम ऑन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखिए मशीन कहाँ लिखी हुई है. मशीन इज़ हियर. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ 2,40,000. 2,40,000 का आप 5% निकालेंगे तो माय डियर स्टूडेंट 12,000 रुपीज़ आएगा. और 12,000 से अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट नुकसान है. इट इज़ अ लॉस and loss will come in the debit side of the revaluation account. That's why you can check this is a debit side of the revaluation account to machinery and amount is 12,000. 12,000 का हमें नुकसान हुआ my dear student. Now I will come on the next point. Next point is this. Goodwill of the firm be fixed 1,80,000. Goodwill of the firm fixed 1,80,000 and B shares therefore be adjusted in the capital account of A and C whose share in future in proportion of 3/4 and 1/4. My dear student, it's mean new ratio is given in this question and total goodwill of the firm is given 1,80,000. My dear student, now I will come on the working note. This is the working note of it and they are saying that new ratio 3/4 and 1/4. 4th हटाएंगे तो 3:1. My dear student, this is the new ratio. And now if you have the old ratio and if you have the new ratio, then definitely you should calculate the gaining ratio because if there is a treatment of goodwill तो यहाँ पर हमें gaining ratio की ज़रूरत पड़ेगी my dear student. तो A's gain formula is a new minus old. Now you can check A का new कितना है. Yes, 3/4. This is 3/4. Old कितना है 3/, इनसे का टोटल 6. 3/6 my dear student. तो now if you will calculate it 3/4 तो यहाँ पर LCM आएगा 12. तो 9 minus 6 is equal to 3:12 my dear student. इसी तरह से आप my dear student आप कैलकुलेट करेंगे C's गेन न्यू माइनस ओल्ड. तो C's का न्यू एंड C का ओल्ड. So now you will calculate 1/12 my dear student. Then gaining ratio of A and C. A का गेन कितना आया था 3/12 1/12. तो अगर 12 हटा देंगे तो यहाँ पर ये 12 हटाएंगे तो 3:1 ये आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1. My dear student, now they are saying the total goodwill of the firm is 1,80,000 and B share we know very well about it. B is going from the partnership. तो B का शेयर कितना है from the old ratio you can check. Yes, I am coming on the old ratio. This is a B share 2/6. 2/6. So my dear student, now we can check 1,80,000 into 2/6. तो this amount is 60,000. तो अगर B बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, if B is retiring from the business, तो डेफिनेटली B को गुडविल के 60,000 रुपये मिलने चाहिए. और कौन देगा? गेनर पार्टनर इन 3:1 रेशो में. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. नाउ आई विल कम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम ऑन द बाय साइड. इन द बाय साइड बी इज़ रिटायरिंग माय डियर स्टूडेंट एंड द कॉन्सेप्ट इज 45,000 एंड 15,000. नो, इसको अभी हटाते हैं. हमें बी को देने हैं कितने रुपए? बी को हमें 60,000 रुपीज़ देने हैं माय डियर स्टूडेंट. 60,000. तो डेफिनेटली इफ़ बी इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर और उसको गुडविल का पैसा देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी. कैपिटल इंक्रीज़ होगी बाय साइड से, क्रेडिट साइड से. तो डेट्स वाई 60,000 रुपीज़ इसके कॉलम में यहाँ पर आने चाहिए. बट इन 60,000 को 3:1 गेनिंग रेशो में तोड़ दीजिए माय डियर स्टूडेंट. गेनिंग रेशो में आप तोड़ेंगे तो माय डियर स्टूडेंट इन दैट सिचुएशन 15,000 45,000 और 15,000 3:1 के रेशो में 60,000 को तोड़ेंगे तो इतना आएगा. इसका मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ कहनी है, 45,000 मिलना चाहिए बी को, 45,000 मिलना चाहिए और 15,000 भी मिलना चाहिए. टोटल 60,000 हो जाता है. इतना मिलना चाहिए इसे. लेकिन 45,000 कौन देगा? 45,000 ए देगा और ये सी देगा, क्योंकि बिकॉज द रेशो इज 3:1. ए का इतना है और बी का इतना है. तो इसका मतलब ए 3 के अकॉर्डिंग पेड करेगा और बी 1 के अकॉर्डिंग पेड करेगा. तो यहाँ पर हमने कह दिया ए इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ पर इसको 60,000 रुपीज़ मिल गए इस तरह से.
लेकिन अगर ए और सी दे रहे हैं तो ए और सी की कैपिटल डिक्रीज होगी। ए की कैपिटल 45,000 से और सी की कैपिटल 15,000 से, और कैपिटल डिक्रीज होगी टू साइड से। माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द टू साइड। इन द डेबिट साइड अमाउंट इज 45,000 इन द डेबिट साइड। ए के डिक्रीज हो गए 45,000 और सी के डिक्रीज हो गए आपके 15,000। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप दो पॉइंटों को लिखेंगे। 45,000 रुपये ए के डिक्रीज होंगे और 15,000 रुपये सी के डिक्रीज होंगे, और यहाँ पर आप डैश लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ अ गोइंग पार्टनर, इट इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर। जब आप ए और सी के कॉलम अमाउंट लिख रहे हैं तो नाम आपको बी का लिखना चाहिए यहाँ पर। नाउ यू कैन चेक डेट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि आप पहले इस बात को चेक करें। अगेन आई वांट टू टेल यू दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट आपको सबसे पहले कहना है कि टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म 1,80,000 रुपये, इट इज़ गिवन दिस क्वेश्चन। बी जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर कितना है 2/6, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका 1,80,000 में 2/6 निकाला 60,000, तो 60,000 रुपये मिलने चाहिए। तो अगर 60,000 मिलेंगे तो डेफिनेटली हाथ में नहीं देंगे, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएंगे। अगर कैपिटल को बढ़ाएंगे माय डियर स्टूडेंट तो कैपिटल बढ़ेगी बाय साइड से, तो 60,000 मिलेंगे, लेकिन 60,000 को तोड़ के मिलेंगे 3:1 गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो में तोड़ेंगे। अब 45 कौन देगा और 15 कौन देगा? जो गेनिंग रेशो 3:1 है, मतलब ए और सी का गेनिंग रेशो, ए और सी, तो ए देगा 3 के अकॉर्डिंग और सी देगा 1 के अकॉर्डिंग। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये देंगे तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी 45,000 और 15,000 से, और नाम बी का आएगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस अ फुल कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट। नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट। इन द लास्ट पॉइंट दे आर सेइंग दैट बी पेड ₹50,000, बी को 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया गया इन कैश में, एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर्ड, बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, द ऑलमोस्ट द फुल क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम ऑन दिस सॉल्यूशन। यहाँ पर आपकी दो अमाउंटें आ चुकी थी, दिस है 10,000, 50,000, अमाउंट इज 60,000 माय डियर स्टूडेंट। इस 60,000 को आप यहाँ पर लेकर जाएंगे 60,000, इस 60,000 में आप ये सब चीज़ें माइनस करेंगे 3,000, 12,000, तो आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे 30,000। इस 30,000 को 3:2:1 के रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे माय डियर स्टूडेंट। और दिस इज अ गेन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। माय डियर स्टूडेंट, 15, 10, इसको आप इस अमाउंटों को, ये जो प्रॉफिट है इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में लेके आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ अ 15,000, 10,000 एंड 5,000 द बाय साइड, एंड दिस इज अ रिवैल्यूएशन गेन ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से आपका पार्टनर्स रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिटायरिंग पार्टनर का वर्क पहले करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर्स की अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। द टोटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर 3,74,000, इसको आप इस साइड में लेकर जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 3,74,000। इसमें से इस 4,000 रुपये को माइनस करेंगे तो हमारे, इसके बाद आपको इस 50,000 को माइनस करना है, क्योंकि 50,000 हमें कहना पड़ेगा टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था डायरेक्टली इसे पेमेंट कर दिया। तो इसको पेमेंट करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी थी 50,000 रुपये से, 50,000 का पेमेंट कर दिया इसे। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है 3,20,000 रुपये, वो कहाँ डाल दिए? इसके लोन अकाउंट में डाल दिए, 20 लोन अकाउंट। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट। नाउ जब ये कंप्लीट हो गया तो आप अब ए का टोटल कर दीजिए। ए का टोटल हमारा आ गया है 4,71,000। नाउ आई विल कम हियर 4,71,000। 4,71,000 में से दोनों चीज़ें माइनस करिए तो इसका बैलेंस बचा 4,20,000 रुपये। दिस इज अ टू बैलेंस CD, तो ये कैपिटल का बैलेंस माय डियर स्टूडेंट, लाइक दिस 1,57,000। 1,57,000 में से माय डियर स्टूडेंट इसे माइनस करेंगे 1,40,000 रुपये बचेंगे। दिस अ बैलेंस CD माय डियर स्टूडेंट। इनके तो बैलेंस CD आ गए हैं कि इसकी कैपिटल इतनी हो गई, इसकी कैपिटल इतनी हो गई है, और इसको हमने पेमेंट कर दिया 50,000 रुपये का, इसलिए इसके बाद
इसका लोन अकाउंट इतना आया है 3,20,000 रुपये. लोन मीन्स कि वी हैव टेकन द लोन फ्रॉम बी एंड आफ्टर सम टाइम वी विल पे. दिस इज द कॉन्सेप्ट. माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, दिस इज अ बैलेंस शीट माय डियर स्टूडेंट. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो बाय द हेल्प ऑफ द प्रीवियस बैलेंस शीट we can maintain this balance sheet, my dear student. So now I will check this balance sheet. First of all, I will come in the liability side. Liability side, they are saying creditors. Creditors amount is 1,08,000. My dear student, in the new balance sheet I will come और मैं आपको शो करूँगा. This is a creditors and amount is 1,08,000. Why we are writing this? क्योंकि अगर क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ होता तो हमें रिवैल्यूएशन में नज़र आएगा. रिवैल्यूएशन हम देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चेंज हुआ है, मशीन में चेंज हुआ है, और दिस इज अ प्रोविजन फॉर रिपेयर्स. देयर इज अ एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर रिपेयर. यहाँ पर दिस अ फिफ्थ एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर 50,000 15,000 का प्रोविज़न है मेड टू रिपेयर. तो अगर हम प्रोविज़न कर रहे हैं तो प्रोविज़न इज अ लायबिलिटी. डेट्स वाई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो नुकसान होगा. डेट्स वाई दिस रिपेयर हैज़ कम इन द डेबिट साइड. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे चेंज हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें चेंज हुआ है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस फाइनेंस रेंज में और लैंड में चेंज हुआ है. तो क्रेडिटर में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो जिसमें नो चेंज है एज इट इज अमाउंट जाएगी माय डियर स्टूडेंट. नाउ आई विल कम ऑन द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज अ जनरल रिजर्व. माय डियर स्टूडेंट, रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट, दीज आर थ्री थिंग. अगर ये मिलती है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एंड इफ़ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट इज़ फिनिश्ड. तो अगर इफ़ इट इज़ फिनिश्ड तो अब तो ये नहीं आने वाली, इट विल नॉट कम इन द न्यू बैलेंस शीट बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो अब ये नहीं आएगा. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द कैपिटल. दिस इज द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी. बट नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो केवल दो की कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है. 4,20,000 है ए की, 1,40,000 है बी की. लेकिन इसकी कैपिटल नहीं निकाली थी. तो माय डियर स्टूडेंट, इसका लोन अकाउंट निकाला था एंड लोन इज़ ऑल्सो लायबिलिटी 3,20,000 रुपये. इसका मतलब तीनों चीज़ें लायबिलिटी साइड में जानी चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई वांट टू शो यू डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ए एंड सी 4,20,000 1,40,000. तो टोटल कैपिटल 5 लाख. एंड दिस इज अ लोन, बी इज लोन, अमाउंट इज रुपीज़ 3,20,000. तो 1 2 3 केवल 15,000 रुपये बचे हुए हैं. ये बाद में हम देखते हैं, लेकिन इतना वर्क हमने कर दिया माय डियर स्टूडेंट ओल्ड बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प से. अब हम एसेट साइड में आएंगे क्योंकि ये लायबिलिटी साइड की तो सारी चीज़ हमने देख ली है. नाउ वी विल कम इन द एसेट साइड. एसेट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कैश. सबसे पहले हमारे सामने आता है कैश एंड द कैश बैलेंस इज 80,000. माय डियर स्टूडेंट, 80,000 हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम एक चीज़ बड़ा अच्छे से पता है कि 80,000 में से हमने 50,000 रुपये का पेमेंट करा है. माय डियर स्टूडेंट, इफ़ 80,000 में से अगर आप 50,000 का पेमेंट कर देंगे किसको, आउटगोइंग पार्टनर को, तो कितना बैलेंस हो रहा है 30,000. तो वो लेफ्ट ओवर अमाउंट इज़ 30,000 इज़ हियर. तो डेट्स वाई आप उसे थोड़ा सा चेक करके तब लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट. नाउ आई विल कम ऑन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड. एसेट साइड में हम कहते हैं डेटर्स 1 लाख रुपीज़, बट प्रोविज़न 2,000 है और हम जानते हैं अच्छी तरह प्रोविज़न इंक्रीज़ 3,000 रुपये से और हुआ था. तो प्रोविज़न 5,000 रुपये हो गया था. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक करेंगे प्रोविज़न इज़ अ लायबिलिटी एंड प्रोविज़न इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज़ 3,000. तो प्रोविज़न 5,000 रुपये हो गया था. तो नाउ यू विल कम ऑन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप आएंगे एंड ईजीली आप बैलेंस शीट में आके इस बात को चेक कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट. ईजीली यू कैन चेक हियर that this is a debtors, this is a debtor amount is of 1 lakh and provision 2,000 and 3,000 total 5,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट विल बी कम 95,000 माय डियर स्टूडेंट. अगर आप एक एक करके अमाउंट लिखते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट देन फुल क्वेश्चन विल बी कंप्लीट माय डियर स्टूडेंट. नाउ अगेन आई एम कम हियर. नेक्स्ट इज अ स्टॉक. स्टॉक अमाउंट इज अ 90,000 and my dear student, if you
विल चेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में कहीं भी स्टॉक का कोई भी कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन द बैलेंस शीट स्टॉक you will write the stock and stock amount is 90,000, no change. So by the help of the old balance sheet we are maintaining the new balance sheet. in this side we will check stock के बाद हम कहते हैं मशीनरी 2,40,000, बट मशीनरी में चेंज हुआ है। आप चेक कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी आई है टू साइड में, माय डियर स्टूडेंट, द टू साइड मशीनरीज का, और टू साइड का अंदर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और मशीनरी को नुकसान कब होगा? जब वो डिक्रीज़ होगी, 12,000 से डिक्रीज़ हुई है। तो 2,40,000 से 12,000 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितने की बचेगी मशीनरी? आप चेक कर सकते हैं, 2,12,000 में से 2,40,000 में से 12,000 रुपये डिक्रीज़ करेंगे तो 2,28,000 की मशीनरी बचेगी। तो माइनस करके आपको यहाँ पर लिखना, माय डियर स्टूडेंट। नाउ आई विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज़ 5 लाख रुपीज़, बट यहाँ पर भी लैंड और बिल्डिंग के लिए भी एडजस्टमेंट थी, और नाउ रिवैल्यूएशन में चेक कर सकते हैं बाय साइड में आया है। बाय साइड का मतलब फ़ायदा है, और लैंड और बिल्डिंग को फ़ायदा कब होगा बट माय डियर स्टूडेंट? जब वो इंक्रीज़ हो रही होगी। तो 50,000 से इंक्रीज़ हुई है, तो अगर लैंड और बिल्डिंग 50,000 से इंक्रीज़ हुई तो 5 लाख रुपये की तो थी, और 50,000 से और इंक्रीज़ हुई है, तो अमाउंट विल कम 5,50,000। नाउ वी विल चेक, दिस इज अ लैंड एंड बिल्डिंग, and my dear student, now the amount is land and building and plus appreciation, तो 5 lakhs plus 50,000, टोटल 5,50,000 my dear student। इस तरह से आपको कंप्लीट करते चलना। बाय द हेल्प ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट यू आर मेंटेनिंग द न्यू बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस इज अ लॉस एंड ऑलरेडी यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दैट्स वाई इट विल नॉट कम इन द न्यू बैलेंस शीट my dear student, because there is a 3 item goodwill loss and deferred revenue expenditure, and if you have distributed in the partners capital account, definitely it will not come in the new balance sheet my dear student। and my dear student, if we have completed the question, पूरी बैलेंस शीट को हमने चेक कर लिया, जो चेंज हुआ है उसे चेंज करके और जो चेंज नहीं हुआ उसे बिना चेंज करे अमाउंट लिख दिए। नाउ आई विल कम अगेन ऑन द रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे कि हमने क्या क्या वर्क करा है। यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इसका वर्क हो गया, मशीनरी का करा है, बट प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स का वर्क नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो प्रोविज़न फॉर रिपेयर इज़ अ न्यू लायबिलिटी, एंड दिस न्यू लायबिलिटी वांट टू कम इन द पार्टनरशिप। तो ये न्यू लायबिलिटी है, तो 15,000 रुपये हम इसके लिखेंगे, और किस नाम से? प्रोविज़न फॉर रिपेयर। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू चेक, एंड लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट, इन द यहाँ पर हमने देखते हैं लैंड का वर्क हो गया, बट अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस, दिस इज अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड 10,000, एंड प्रीपेड इज अ एसेट। तो एसेट्स यहाँ पर आनी चाहिए, न्यू एसेट इज वांट टू कम इन द पार्टनरशिप फॉर्म, तो दैट्स वाई आप इसे यहाँ लिखेंगे अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस इन द एसेट साइड, इन द एसेट साइड माई डियर स्टूडेंट, एंड अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। नाउ माई डियर स्टूडेंट, द फुल क्वेश्चन हैज़ completed। Now you can total this side total 10,03,000, and now you will check that this side total 10,03,000. Both total will be equal. That's why you have to maintain the revaluation account, then partners capital account, and then the balance sheet my dear student. Now this is a full concept of the question. I hope you understood. Thank you very much my dear student, and God bless you. Thank you.